बच्चे इस ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਿਨੋਲਿਨ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਸਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੈਟਰੋ ਐਟਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ, ਔਰ ਫਿਊਜ਼ਡ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਔਰ 8। ਸੋ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5th ਜਾਂ 8th ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਐਟ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ, 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੋ ਇਹ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ 6 ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਸ ਐਚ, ਔਰ 5th ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ 6 ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਐਚ ਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਇਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਹੈ ਪਿਰੀਡੀਨ ਰਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਲਟਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ, ਔਰ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਲਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 4th ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾर्ट सेम है, और इस रिंग के जो डबल बॉन्ड है उन्होंने पोजीशंस असी चेंज कर देंगे। सो ये 4 स्ट्रक्चर्स हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उस तो बाद हम इतने डबल बॉन्ड जो है दैट इज़ इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, सो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इतने शिफ्ट हो जाएगी। सो एच ई ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी साइड पर शिफ्ट होगी, जिस दे नाल नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगेन पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। सो ये पार्ट असी ऐसा लिखांगे क्योंकि इहदे च असी कोई चेंज नहीं कर रहे। ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इत्थे शिफ्ट हो रही है, इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इत्थे पॉजिटिव चार्ज, इत्थे फिर डबल बॉन्ड है, उसका अगेन इसमें मैं 6 लिखता, फिर पॉजिटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेशन विच है, अगेन पाई बॉन्ड इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। सो इत्थे डबल बॉन्ड और ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज इत्थे आ जाएगा। सो इस तरीके मेरे को 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। और उस तो बाद मैं दिखा रही हैं अटैक एट, ये दिखाया से अटैक 5 पोजीशन थे। सिमिलरली वी कैन राइट अटैक एट पोजीशन 8। सो उससे विच फिर असी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखांगे।
ये सारे को स्टार्टिंग मटीरियल और जो इलैक्ट्रोफाइल 8th कार्बन से अटैक करेगा सो अगर 8th कार्बन से अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जोड़ा है 7th कार्बन से आ जाएगा और इत्थे अटैक कर दिता इलैक्ट्रोफाइल ने। उस तो बाद ये इलैक्ट्रॉन सीधे शिफ्ट हो जाएगी सो इत्थे H इलैक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सो अगेन फर्स्ट एंड सैकेंड। उस तो बाद ये दोनों स्ट्रक्चर जो बनिया ने इहदे च पीरिडीन रिंग जो है उस इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जी है सॉरी एरोमेटिक करैक्टर मेनटेन्ड है उसका असी डिस्ट्रॉय नहीं किया ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स ने। सो अगले दो स्ट्रक्चर्स असी फिर उस तरह लिखांगे जिस दे विच आ पार्ट रिंग का सेम रहेगा सिर्फ जो पीरिडीन रिंग है उन्होंने जोड़े डबल बॉन्ड्स है उन्होंने पोजीशन असी चेंज कर देंगे। सो इस तरह असी दो स्ट्रक्चर्स होर लिख सकते हैं सो HE इत्थे पॉजिटिव चार्ज सी फर्स्ट स्ट्रक्चर दे विच और असी पोजीशन डबल बॉन्ड सी चेंज करती सो ये स्ट्रक्चर 3 होगी और उसी तरीके नाल ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर मैच कर रही है सैकेंड स्ट्रक्चर जी ऑलरेडी ड्रॉ की सी सिर्फ इत्थे पाई बॉन्ड सी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी असी चेंज कर देंगे। उस तो बाद क्योंकि इत्थे जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन के विच आ गया ये इलैक्ट्रॉन सीधे शिफ्ट हो जाएगी सो ये पार्ट इस तरीके नाल और ये इलैक्ट्रॉन सीधे शिफ्ट हो गई है पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से आ जाएगा और हुण फिर पॉजिटिव चार्ज जोड़ा है कॉन्जुगेशन के विच है सो असी उसनों फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देंगे ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा और अगेन अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो इस तरीके नाल असी इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं सो इत्थे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से जो फ्यूज कार्बन है इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई है और पहलों बॉन्ड इस जगह पे है सो 3rd 4th 5th 6th एंड 7th सो असी देख रहे हैं चाहे अटैक असी इत्थे किया सी 5th कार्बन से या फिर असी 8th कार्बन से किया साढ़े को 7 स्ट्रक्चर्स बन रही हैं हर केस दे विच जिन्हां विचों 1st 2nd 3rd और 4th जिहड़े 4 स्ट्रक्चर्स ने उन्हां विच जिहड़ी आ वाली रिंग है पीरिडीन रिंग है फ्यूज्ड उसका एरोमेटिक करैक्टर मेनटेन्ड है सो ये चारों स्ट्रक्चर्स एक्सट्रा स्टेबल ने क्योंकि इहदे विच एक रिंग एरोमेटिक करैक्टर है। जो 5th स्ट्रक्चर से ड्रॉ की है इस दे विच नाइट्रोजन ते पॉजिटिव चार्ज है सो दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल 1 to 4 स्ट्रक्चर्स दे आर मोर स्टेबल क्योंकि एरोमेटिक करैक्टर मेनटेन्ड है। 6 और 7 स्ट्रक्चर अगर देखिए तो इस किसी रिंग विच एरोमेटिक करैक्टर नहीं है सो दे आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल सो वी कैन सी दैट देयर आर आउट ऑफ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देयर आर 4 स्ट्रक्चर विच आर हैविंग मोस्ट स्टेबिलिटी। इसी तरह अगर असी अटैक एट 8th पोजीशन देख रहे हैं तो 1st 2nd दैन 3rd 4th ये जो 4 स्ट्रक्चर्स है अगेन दे आर मोस्ट स्टेबल क्योंकि इस दे विच जिहड़ा एक रिंग है वो एरोमेटिक करैक्टर है। बाकी जो 3 स्ट्रक्चर्स ने ये बनिया हुई इस दे विच किसी भी रिंग विच एरोमेटिक करैक्टर नहीं है सो दे आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल सो बट क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर्स ने जिसदे विच नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा ने और एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी ने सो इट मीन्स जो अटैक है इज़ प्रेफरेबली एट पोजीशंस 5 एंड 8 बट असी इस अटैक जोड़ा है बेंजीन रिंग ते शो कर रहे हैं पीरिडीन रिंग ते नहीं शो कर रहे इसका रीज़न यही है आप पीरिडीन वाले केस में पढ़ चुके हैं क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है इट विल विड्रॉ दिस रिंग इलैक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ टू सम एक्सटेंट जो कि ये वाली जी रिंग है ये कार्बोसाइक्लिक है मीनस
कोई भी हेटेरोएटम नहीं है, सारे कार्बन ही है, तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इस करके इस विच इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घट है तो इलैक्ट्रोफाइल जो है इस रिंग ते अटैक करेगा, पीरियडिन रिंग ते प्रेफरेबली अटैक घट होएगा। और इस रिंग ते कित्थे अटैक होएगा? वी हैव 4 पोजीशंस 5 6 7 8। 5 और 8 असी अटैक देख लिया है कि इन्हां विच जिहड़े 7 7 7 स्ट्रक्चर्स बन रही ने, और जिन्हां विच जिहड़े 4 स्ट्रक्चर्स ने दे आर हैविंग 1 रिंग विद एरोमेटिक करैक्टर रिटेन्ड। हुण अगर असी देखते हैं अटैक 6 और 7th पोजीशन ते, तो फिर की हो रहा है? सो इसी तरह से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज पोजीशन नंबर 5 6 7 8। सो अगर अटैक पोजीशन नंबर 6 से होएगा, सो अटैक 6 पोजीशन ते हो रहा है, तो 5th कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इत्थे डबल बॉन्ड एज सच रहेगा। उस तो बाद इस तरह इनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर एक होर बन जाएगी जिसके आ पार्ट सेम रहेगा कार्बोसाइक्लिक रिंग का, और पीरियडिन रिंग के जो बॉन्ड्स है उन्होंने असी पोजीशन चेंज कर देंगे जिमें कि आप पहलों किया है इस तरीके नाल। ठीक है। सो इस तो बाद हुण अगर असी पॉजिटिव चार्ज नू शिफ्ट करना है, डीलोकलाइज करना है, तो उस तो बाद इस रिंग दे विच पीरियडिन रिंग दे विच चला जाएगा जिस नाल उसका एरोमेटिक करैक्टर खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स बन रही ने जिहड़े कि ज़्यादा स्टेबल ने, जिन्हां विच एक रिंग का एरोमेटिक करैक्टर मेनटेन्ड है। इस तरह अगर असी अटैक शो कर रहे हैं पोजीशन 7, तो उस केस विच की हो रहा है? So we can compare the number of resonating structures and their contribution. So plus electrophile. So this is 5th, 6th, 7th position. So अगर 7th पोजीशन ते अटैक होएगा तो 8th कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए रिंग विच इलैक्ट्रॉन एरोमेटिक करैक्टर मेनटेन्ड है, और दूसरी स्ट्रक्चर इज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर जिस दे विच डबल बॉन्ड्स की पोजीशन असीं फिर चेंज कर देंगे इस तरीके नाल। सो अगेन हुण जे पॉजिटिव चार्ज असीं इस स्ट्रक्चर विच देखिए, इस स्ट्रक्चर विच देखिए, तो वह दूसरी रिंग दे विच जाएगा पीरियडिन रिंग दे विच, जिस नाल उसका एरोमेटिक करैक्टर खत्म हो जाएगा। सो अगेन वी आर हैविंग ओनली 2 more stable structures as compared to 4 more stable structures in case of attack at position number 5 and 8. So इस करके जो orientation है electrophile दी during the substitution reaction that is at position number 5 and 8.